गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास के अंदर हमने कारा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक और उसकी मॉर्फोलॉजी और उसके स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स का अध्ययन किया था। इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिप्रोडक्शन इन कारा। तो कारा के रिप्रोडक्शन की जब बात करते हैं तो हमें पता है कि इट रिप्रोड्यूसेस बाय बोथ वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल मीन्स, यानी दोनों तरह के रिप्रोडक्शन मेथड हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट. Vegetative reproduction, the vegetative reproduction takes place by the formation of the following structures, that is by the formation of bulbils. ये क्या होते हैं? तो these are small oval or spherical bodies developed on the stem or root nodes के ऊपर हमें देखने को मिलते हैं. Bulbils are formed on root of Cara aspera and stem of Cara baltica. उनके नोड्स के ऊपर हमें इस तरह की स्ट्रक्चर्स कुछ देखने को मिलती है. They are called as a bulbils. Or after deattachment they germinate and develop into new plant. Another structure that is which helps in the vegetative reproduction in Cara, that is amorphous bulbils. These are small cells developed and aggregated at the nodes called amorphous bulbils. They are found in Cara fragilis, Cara baltica, etc. On being detached from the mother plant, they germinate and develop into new plant. Now these are the structures you can see in the diagram, that is stem bulbil, that is root bulbils are there, amorphous bulbils and amylum stars. These are the vegetative structures which help in the propagation of Cara. जब हम amylum stars की बात करते हैं तो these are multicellular aggregation of cells. They look like stars and they cells are densely filled with amylum starch. Thus, they are called as amylum stars. The amylum stars are developed at the nodal cells of the basal region. Example is Cara steligera. Now, another method of vegetative reproduction is secondary protonema. These are thread-like structures developed from the primary protonema or from the basal cell of the rhizoid. यानी rhizoid की basal cell से या प्राइमरी प्रोटोनोमा से ये इनका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है. न्यू प्लांट्स आर डेवलप्ड फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनेमा, और उनसे उस स्ट्रक्चर से हमें नए प्लांट्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है. तो दिस इज ऑल्सो ए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन कारा. नाउ व्हेन इट कम्स टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, so when we talk about this, that the male and the female reproductive structures which are present in the Cara, they are very interesting. Sexual reproduction of Cara is an advanced oogamous type. और इसके जब सेक्स ऑर्गन्स की बात करते हैं तो दे आर मैक्रोस्कोपिक एंड लार्ज. द मेल सेक्स ऑर्गन इज स्पेरिकल एंड येलो टू रेड इन कलर कॉल्ड ग्लोब्यूल, जो कि बिल्कुल गोल स्ट्रक्चर होती है. द फीमेल सेक्स ऑर्गन is more or less oval and green in color called the nucleus or oogonium. They develop on the nodes of the branches of the limited growth, that is primary lateral, intermingled with the secondary lateral. Nucleus is always situated singly above the globule, यानी globule हमें नीचे देखने को मिलता है और nucleus हमें ऊपर. A adjacent to one another, but the position of nucleus is always above the globule. Most of the species are homothallic or monoecious. कारा की जो majority of the species they are homothallic या they are monoecious. That means male and female sex organs they develop on the same plant. इस तरह के पादपों को हम हिंदी के अंदर एक लिंगाश्रयी कहते हैं. द्विलिंगाश्रयी कहते हैं. The name is confusing when it comes to monoecious and dioecious. Monoecious means both the male and the female reproductive structure they are present on the same plant. Dioecious, male and female reproductive structures are present on the different plants. So that is ek lingasray, and when both of them they are present on the same plant, that is dvilingasray, means both the sexes are present on the same plant. But some are heterothallic or dioecious. Example, Cara wallichi. Now, when it comes to the structure of the globule, mature globule are spherical in shape and yellow to red in color. Each globule consists of 8 curved plates
situated towards the outer side which are the shield cells. आगे की स्लाइड्स के अंदर जब हम ग्लोब्यूल के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हमें 8 शील्ड सेल देखने को मिल सकती है. इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, जब हम कारा के ग्लोब्यूल की बात करें तो वी कैन अंडरस्टैंड इट इन दिस वे कि वी हैव टेकन 8 अम्ब्रेलास एंड आपने उन 8 अम्ब्रेलास को एक उनकी जो डंडी को एक तरफ अंदर की तरफ रखते हुए सबको एक इस तरह के स्ट्रक्चर, क्लोज स्ट्रक्चर, बॉल नुमा स्ट्रक्चर का निर्माण आपने किया. तो वो प्रत्येक जो अम्ब्रेला की जो शील है दैट रिप्रेजेंट्स ए शील्ड सेल्स. From the inner side of the each shield cell, a centrally placed rod-shaped structure is developed that is called as a manubrium. उन शील्ड सेल से सेंटर की तरफ से सेंटर से निकलती हुई एक स्ट्रक्चर हमें रोड शेप्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलती है. यानी 8 शील्ड सेल से रोड शेप्ड स्ट्रक्चर एक निकलती है, डंडेनुमा संरचना निकलती है, और सारी की सारी डंडेनुमा स्ट्रक्चर्स आकर के कॉमनली एक जगह पे ज्वाइन मिलती है. एट द डिस्टल एंड ऑफ द ईच मेन्यूब्रियम वन और मोर globule cells developed, and these are called the primary capitula cells या primary capitulum cells. जहाँ पे वो सारी की सारी मेन्यूब्रियम की जो सेल्स आकर के मिलती हैं, उनके डिस्टल एंड पे जो सेल्स पाई जाती हैं दे आर कॉल्ड एज प्राइमरी कैपिटुलम सेल्स. ईच प्राइमरी कैपिटुलम सेल्स डेवलप्ड 2 और मोर सेकेंडरी कैपिटुलम सेल्स. उनके ऊपर प्राइमरी कैपिटुलम सेल्स के ऊपर सेकेंडरी कैपिटुलम सेल्स की फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है. And finally, each secondary capitulum cells develops into 2 to 4 long antheridial filaments. यानी उनके ऊपर secondary capitulum cells के ऊपर हमें antheridial filaments देखने को मिलते हैं. And each antheridial filament has 25 to 250 cells, and each cell is capable of forming a biflagellate coiled and uninucleate antherozoid. So you can imagine how complex this structure is. कि ग्लोब्यूल एक गेंदनुमा गोल से स्ट्रक्चर का निर्माण होता है. बीच के प्रत्येक जो 8 सेल से इस स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, और उससे निकलने वाली मेन्यूब्रियम सेल्स होती हैं, फिर उससे जुड़ी हुई हैं प्राइमरी कैपिटुलम सेल्स देखने को मिलती है, उससे जुड़ी हुई सेकेंडरी कैपिटुलम सेल्स देखने को मिलती है, उनसे जुड़े हुए एंथेरियल फिलामेंट देखने को मिलते हैं. एंड दस ए ग्लोब्यूल कैन डेवलप एज मच एज 20,000 to 50,000 antherozoids. Now from this diagram I think it will become more clear to you. ये राउंड सी स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रही है. यू कैन सी कि जब हम इसका डेवलपमेंट प्रोसेस किस तरह से कैसे क्या हमें होता है, ये इस डायग्राम के अंदर आपको आसानी से दिखाई दे सकता है. इन द डायग्राम जी यू कैन क्लियरली सी ए राउंड शेप्ड स्ट्रक्चर इज देयर, एंड वो शील्ड सेल्स हमें देखने को मिल रही है. उनके ऊपर वेरियस डिज़ाइन या वेरियस एक पैटर्न, अट्रैक्टिव पैटर्न उनके ऊपर हमें देखने को मिलता है. लेकिन जब हम इंटरनली इस स्ट्रक्चर को एच के अंदर, जो डायग्राम एच उसके अंदर हम देखते हैं, तो हमें वो प्रत्येक जो शील्ड सेल्स है उससे अंदर की तरफ निकला हुआ एक डंडेनुमा संरचना हमें देखने को मिलती है, दैट इज कॉल्ड एज ए मेन्यूब्रियम. और उस मेन्यूब्रियम्स के डिस्टल एंड के ऊपर हमें प्राइमरी कैपिटुलम सेल्स देखने को मिलती है. उन प्राइमरी कैपिटुलम सेल्स के साथ जुड़ी हुई सेकेंडरी कैपिटुलम सेल्स देखने को मिलती है, और उन सेकेंडरी कैपिटुलम सेल्स से हमें बहुत सारी लंबी धागेनुमा संरचना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलती है. दे आर कॉल्ड एज एंथेरियल फिलामेंट्स. और उन एंथेरियल फिलामेंट्स से हमें जो एंथ्रोजोइड्स की फॉर्मेशन देखने को मिलती है. नाउ व्हेन इट कम्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर न्यूक्लियल और oogoneum, द न्यूक्लियल ऑफ कारा इज ओवल विथ लॉन्ग शॉर्ट स्टार्क. ये ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर होती है. ग्लोब्यूल की बात करते हैं तो इट इज कम्प्लीटली ऑलमोस्ट राउंड. जब हम न्यूक्लियल की बात करते हैं तो इट इज़ ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर. लाइक ग्लोब्यूल इट इज़ ऑल्सो डेवलप्ड एट द नोड ऑफ द प्राइमरी लेटरल जस्ट अबव द ग्लोब्यूल इन होमोथैलिक स्पीसीज. यानी जहाँ पे एक ही थैलस के ऊपर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाई जाती है, तो उनकी पोजीशन हमें इस तरह से देखने को मिलती है. इट कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रली प्लेस्ड वन सेंट्रल सेल, वन स्टॉक एंड वन लार्ज एग एट द टॉप. The entire structure is covered from the base to 5 spirally twisted tube cells, except at the apex where they form a crown made up of 5 corona cells. यानी जब हम इस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी न्यूक्लियल की या oogoneum की, तो इट इज़ मेड अप ऑफ 5 स्पायरली ट्विस्टेड ट्यूब सेल्स हमें देखने को मिलती हैं. दे आर 5 इन नंबर, और ट्विस्ट करते हुए एक ओवल स्ट्रक्चर का निर्माण करती है 5 ट्यूब सेल्स. एंड
अपेक्स जो होता है न्यूक्लियल का या ऊगोनियम का, that is covered by a crown of cells. They are 5 in number and they are called as a corona cells. The jacket of nucleus shows similarity with the neck cells of the archegonium of the bryophyte. यानी यहाँ पे सिंगल सेल जैकेट हमें उनका देखने को मिलता है. नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऊगोनियम. उसकी ये डेवलपमेंटल किस तरह से कैसे क्या प्रोसेस है उसके अंदर. व्हेन इट कम्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ द ऊगोनियम न्यूक्लियल, यू कैन सी कि कोरोना इन द डायग्राम एच, यू कैन सी कि बीच में एग सेल हमें देखने को मिल रही है. एंड बाहर की तरफ जो स्ट्रक्चर जिससे बनी हुई है, यू कैन सी दिस ट्यूब सेल्स आर देयर. दे आर 5 इन नंबर. दे आर स्पायरली ट्विस्टेड एंड वो ट्विस्ट होकर के ओनली 5 सेल्स मेक द कंप्लीट स्ट्रक्चर. एंड एट द अपेक्स हमें कोरोना सेल्स हमें देखने को मिलती है. दे आर ऑल्सो 5 इन नंबर. और अपर कोरोना सेल्स की तरफ हमें एक रिसेप्टिव स्पॉट देखने को मिलता है. एंड देन there are other cells are there, pedicel cells are there, central nodal cells are there, stalk cells are there और ट्यूब सेल्स आर देयर. ये इस तरह से सारी की सारी इस तरह की डिफरेंट सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन हमें न्यूक्लियल के अंदर देखने को मिलता है. नाउ व्हेन इट कम्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द सेक्स ऑर्गन इन कारा, व्हेन यू टॉक ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ग्लोब्यूल, so the globule develops at the node of the branches of the limited growth. Single peripheral cell of the each node function as the antheridial initial. The antheridial initial first undergoes transverse division to form 2 cells, of which the lower one is the pedicel cell, which forms the stalk. The upper one is the antheridial mother cell. This antheridial mother cell then undergoes 2 vertical divisions as right angle to each other, that is 2-2, 3-3, followed by 1 transverse division. Thus an octant is formed. 8 cell stage is being formed. Each cell of the octant stage then undergoes periclinal division to form outer 8 and inner 8 cells. You can just simply understand this example by you take a potato. The potato undergoes just to understand these divisions, you can think this way कि one single cell is there, you take a potato, you have taken one potato, और उस पोटैटो के अंदर सबसे पहले एक ट्रांसवर्स डिवीजन होता है जिससे 2 सेल्स बनती है. यू कट इट ट्रांसवर्सली, यू टेक ए पोटैटो, यू कट इट ट्रांसवर्सली, देन 2 सेल्स आर फॉर्म्ड. अब इसके अंदर से द लोअर वन इज द पेडिसल सेल एंड द अपर वन इज फॉर्म द स्टॉक एंड द अपर वन इज द एंथ्रीडियल मदर सेल. Then the antheridial mother cell, it undergoes 2 vertical divisions. जो upper one जो antheridial mother cell होती है ऊपर वाली सेल, उसके अंदर 2 vertical divisions parallel to each other, perpendicular to each other. एक vertical division होता है तो 2 सेल बनती है, फिर दूसरा उसके perpendicular vertical division होता है 4 सेल्स बनती है. Now so it has resulted in the formation of the 4 cells. अब उसके अंदर it undergoes transverse division, तो 10 हमें ऑक्टेंट देखने को मिलता है जिसके अंदर 8 सेल्स हमें देखने को मिलती है. ये 8 सेल्स के अंदर क्या होता है, दे अंडरगो पेरिक्लाइनल डिवीजन. यानी उसके अंदर डिवीजन इस तरह से होता है कि वो जिस तरह से आप यू हैव समटाइम्स टू अंडरस्टैंड द डिविजन्स यू नीड टू इमेजिन. आप अपन आलू का छिलका उतारते हैं तो उसको काटते हैं तो बाहर एक, जब हम छिलका उतारते हैं बाहर एक परत बन जाती है और एक अंदर की तरफ आलू का हिस्सा बच जाता है. इन द सेम वे पेरिक्लाइनल डिवीजन हैपन्स इन दिस वे. सो जिसकी वजह से क्या होता है, अंदर की तरफ 8 सेल्स और बाहर की तरफ 8 सेल्स का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है. सो दिस इज हाउ दिस पेरिक्लाइनल डिवीजन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द आउटर 8 सेल्स एंड इनर 8 सेल्स. इसके बाद द आउटर जो या इनर दोनों में से कोई भी जो सेल्स होती हैं उनके अंदर फिर हमें पेरिक्लाइनल डिवीजन से देखने को मिलता है, दस फॉर्मिंग 3 लेयर्स ऑफ द 8 सेल्स. यानी जब कभी लेयर का फॉर्मेशन होता है तो दैट टेक्स प्लेस बाय पेरिक्लाइनल डिवीजन. तो इसके बाद में जो या तो अंदर वाली या बाहर वाली जो सेल्स होती हैं उनके अंदर 8 सेल्स जो हैं उनके अंदर हमें पेरिक्लाइनल डिवीजन देखने को मिलता है. और इसके बिकॉज आफ्टर द रिजल्ट ऑफ दिस पेरिक्लाइनल डिवीजन देयर मे बी लेयर्स ऑफ
3 layers of the cells. The outer 8 cells form the 8 shield cells, the middle 8 shield cells form the manubrium, and the inner 8 cells form the primary capitula. यानी सबसे बाहर की तरफ जो 8 जो सेल्स होती हैं दे मेक द शील्ड सेल्स, उनके बीच वाली जो सेल्स होती हैं दे फॉर्म द मेनुब्रियम, एंड द इनर मोस्ट जो सेल्स होती हैं अंदर की तरफ जो सेल्स 8 सेल्स होती हैं दे मेक द प्राइमरी कैपिटुला. The primary capitula further divide and form 2 or more secondary capitula. Each secondary capitula further divides and forms 2 to 4 antheridial filament, which consist of 25 to 250 antheridial cells or antheridia formed by repeated mitotic divisions. The protoplast of each antheridium metamorphoses into a single biflagellate and coiled antherozoid. यानी जो फिलामेंट का जो एंथ्रीडियल फिलामेंट जो होते हैं उनकी जो सेल्स होती है उनका जो सेल्स का जो प्रोटोप्लास्ट होता है उसके अंदर मेटामॉर्फोसिस हमें देखने को मिलती है और वो सिंगल सेल्ड बायफ्लैजेलेट एंड कोइल एंथ्रोजोइड की स्ट्रक्चर का निर्माण करता है. नाउ व्हेन इट कम्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द न्यूक्लियल, द oogonal initial is developed from the peripheral cell of the primary laterals. The oogonal initial undergoes 2 transverse divisions, thus forming 3-celled stage. The lowermost is the pedicel cell, the middle one is the nodal cell, and the uppermost one represents the oogonal mother cell. और जो pedicel cell होती है it remains undivided and forms the stalk of the nucleus. So lastly, to conclude this topic of reproduction in Kara, that is we have discussed about the reproductive structure. Here comes a stained diagram, stained slide of the globule and nucleus of Kara. In this diagram you can clearly see जो गोल जैसी स्ट्रक्चर जो हमें देखने को मिल रही है, दैट इज ग्लोब्यूल, दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. एंड जो एक ओल शेप्ड स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रही है दैट इज कॉल्ड एज ए न्यूक्यूल. उसके डिस्टल एंड की तरफ हमें यू कैन सी कोरोना सेल्स आते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ कारा.